Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic of my presentation today is the continuation from the chapter Retinal Detachment. Specific learning outcomes. By the end of this presentation, the audience will be able to know about the principles, techniques and complications of scleral buckling, describe tractional retinal detachment and explain exudative retinal detachment. We're going to discuss, firstly we're going to discuss surgery for rhegmatogenous retinal detachment. The other details of rhegmatogenous retinal detachment were discussed by Dr. Anam in the last presentation. For surgery, we have two options. When there is retinal detachment, we have two options for approximating the retina. Either we can go via एक एक्सप्लांट लगा के, या तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर दे रेटिना को, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अंदर से फ्रॉम रेटिना वाली साइड से हम उसको जो डिटैच्ड रेटिना है उसको पुश करके पीछे अप्रॉक्सीमेट कर दें. So as the name suggests, scleral buckling. The scleral buckling is basically an explant जो बाहर से sclera को push कर देता है towards the detachment, और pneumatic retinopexy हम intraocularly करते हैं जिसमें हम अंदर से retina को push कर देते हैं towards the back. For indications for urgent surgery, अर्जेंट सर्जरी में हम कब करेंगे? जब acute हो, symptomatic हो, progressive हो and there is no macular involvement, then we are going to do an urgent surgery for rhegmatogenous retinal detachment. इसके अलावा अगर vitreous hemorrhage हो और हमने B स्कैन कराया और उस पर हमें पीछे retinal detachment नजर आई, तो that is also an indication for urgent surgery. और इसके अलावा सुपीरियर ब्रेक्स में भी हम अर्जेंट सर्जरी इसलिए करते हैं क्योंकि जब ग्रेविटी की वजह से जो सब रेटिनल फ्लूइड है वो नीचे आ सकता है. सो दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन फॉर अर्जेंट सर्जरी, और लार्ज ब्रेक्स आर आल्सो एन इंडिकेशन. In pneumatic retinopexy, it's a day care procedure. हम outpatient procedure है. We basically inject intravitreal gas bubble inside the eye with cryo और लेजर. क्रायो लेजर हम कहाँ करते हैं कि जहाँ रेटिनल ब्रेक है उसके अराउंड जो हेल्दी रेटिना है उसको हम क्रायो और लेजर कर देते हैं ताकि सब रेटिनल फ्लूइड एक्सटेंड ना हो सके, वहाँ से उस जगह वहीं रुक जाए, एक्सटेंड होके हेल्दी रेटिना की तरफ ना जाए. The gases that are used are sulfur hexafluoride and perfluoropropane. The advantages of the main advantage of pneumatic retinopexy is that it is minimally invasive and it's a day care procedure. तो एक दिन में ही हम करके पेशेंट को घर भेज सकते हैं. बट जो सक्सेस रेट है pneumatic retinopexy का वो वर्स है when we compare it to the conventional scleral buckling procedure. The indications for pneumatic retinopexy are uncomplicated retinal detachment, small retinal break या फिर cluster of breaks हो, एक एरिया हो जो 2 clock hours के अंदर cluster of breaks हो और वो upper 2/3 of the retina में हो, तो फिर हम pneumatic retinopexy करते हैं. Next is scleral buckling. I said before कि it's an external retinal detachment surgery. इसको हम conventional भी कहते हैं. Or the material is basically sutured onto the sclera to create an inward indentation on the sclera to approximate the retinal detachment. The purpose is to approximating the retinal pigment epithelium with the sensory retina जहाँ पे से detachment हुई. The explants that are used are soft or hard silicone, and when we are doing the procedure we have to make sure that the entire break should be surrounded by 2 millimeter of the buckle. These are the different types of explants that are used. The first 3 are silicone implants. इनको फिर हम different sizes में cut कर सकते हैं, जैसे D, E और F में बताया हुआ है. Then G, H, I are sponges. Sponges को भी हम scleral implant के साथ explant के साथ attach कर देते हैं to create an indentation. And J is Watsky sleeve. वो भी एक sleeve होती है, उसको हम स्ट्रेच करके ना एक्सप्लांट के साथ ऐसे सूचर कर सकते हैं. एंड K and L आर बैंड्स दैट आर यूज्ड. द कॉन्फ़िगरेशन, जब हम स्क्लेरल बकल लगा रहे हैं तो हम उसको रेडियल भी लगा सकते हैं, एक सेगमेंट पे भी लगा सकते हैं, सर्कमफेरेंशियली अराउंड द आई बॉल भी लगता है और इनसर्कलिंग भी करके भी लग सकता है. This is the picture showing the configuration of scleral buckles. In the first one you can see that it is attached radially
in the second one it's just एक segment पे उन्होंने circumferentially लगाया हुआ है explant को, and in this there is a silicone tire वो पूरा encircle कर रहा है और उसके अंदर एक sponge लगाया हुआ है, and second one is a radial sponge and the explant is encircling the eyeball. In this picture we can see scleral buckling from while in fundoscopy में हमें नजर आ रहा है कि scleral buckle हुआ है. First वाली में एक अगर हम optic disc को as a landmark लें तो ये हमारी eyeball है और इस तरह से करके हमारा radially explant लगा हुआ है, और दूसरी पिक्चर में we can see कि circumferentially around the eyeball लगा हुआ है. The technique for scleral explant is first जो मैंने प्रोसीजर देखा था इन ओटी उसमें सबसे पहले द कंजंक्टिवा एंड द टीनस कैप्सूल को इंसाइज किया गया था, उसके बाद एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को स्टे सूचर से होल्ड करके इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी में देख के न रेटिनल ब्रेक या टियर जो था उसको लोकलाइज किया था, मार्क किया था, फिर क्रायोथेरेपी किया था, फिर उसके बाद पार्शियल थिकनेस स्क्लेरल इंसिजन बना के उसके थ्रू स्क्लेरल एक्सप्लांट को डाल के उसको सूचर कर दिया था. And this was written in the book that conjunctiva is incised, retinal break localized, cryotherapy applied, explant of appropriate dimensions and orientation is then sutured to the sclera, position of buckle checked in relation to the break. This is the picture showing the steps. In the first one, the retinal break is being marked. सेकेंड में सूचर डाला है और फिर उसकी मेजरमेंट करके सेकेंड सूचर डाल के एक स्पंज को मैट्रिल सूचर प्लेस करके स्पंज को लगा दिया गया है टू बेसिकली क्रिएट एन इंडेंटेशन इन द स्क्लेरा. The complications of surgery can be diplopia. Diplopia mechanical effect of buckle की वजह से होता है और ये भी spontaneously resolve हो जाता है. Cystoid macular edema occurs in 25% of the cases and it responds to treatment. Other macular complications include epiretinal membrane, persistent subfoveal fluid, foveal structural disruption, anterior segment ischemia due to vascular compromise. अब obviously we are putting some pressure on the sclera, तो vessels भी compromise हो जाती हैं जिसकी वजह से anterior segment ischemia हो जाता है. Then next is buccal intrusion, extrusion, infection, elevated IOP and choroidal detachment. Surgical failure भी is a complication. First one is missed breaks. जब फंडोस्कोपी करते हैं और हमें कोई एक रेटिनल ब्रेक मिलता है तो उसके 90 डिग्री के अंदर अंदर हमें देखना होता है कि कोई और रेटिनल ब्रेक हमसे मिस ना हो रहा हो. एंड बकल फेल्यूर ऑल्सो हैपन्स. बकल फेल्यूर के कॉजेज होते हैं कि ड्यूरिंग द सर्जरी इनअप्रोप्रिएट पोजीशन उसकी हो, इनअप्रोप्रिएट हाइट या इनअप्रोप्रिएट साइज पे हमने लगाया हो तो उस वजह से बकल फेल हो जाता है. लेट फेल्यूर और रीओपनिंग ऑफ अ रेटिनल ब्रेक ये दोनों प्रोलिफरेटिव विट्रोरेटिनोपैथी की वजह से होते हैं. Then next we have tractional retinal detachment. What is tractional retinal detachment? In this, the neurosensory retina is pulled away from the retinal pigment epithelium by contracting vitreoretinal membranes in the absence of a retinal break. This is a picture showing tractional retinal detachment associated with anterior, posterior and bridging traction. This is also a picture showing tractional retinal detachment. In the first one, we can see localized tractional detachment secondary to pre-retinal fibrosis, and the second one is the B scan showing the detachment. ये पिक्चर शुरू में आनी थी वो बाद में आ गई है. So the first one is showing rhegmatogenous retinal detachment in which एक टीयर की वजह से जो है डिटैचमेंट हो रही है. सेकेंड में ट्रैक्शन है ड्यू टू फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर, और इस थर्ड में सीरस है accumulation of subretinal fluid which leads to retinal detachment. Then the causes of tractional retinal detachment are secondary to diabetes, proliferative retinopathy secondary to diabetes, then retinopathy of prematurity and penetrating posterior segment trauma.
We will be discussing only diabetic tractional retinal detachment. The other two topics will be covered later on. Pathogenesis. Since it's tractional retinal detachment, obviously progressive contraction होती है फाइब्रोवैस्कुलर मेम्ब्रेन की जो रेटिना को पुल कर लेती है, और विट्रोरेटिनल एडिशंस बने हुए होते हैं, ग्रेजुअल उसका ऑनसेट होता है और फ्रीक्वेंटली इनकम्प्लीट होता है. अब जो हमारी फाइब्रोवैस्कुलर मेम्ब्रेन बनी है वो क्यों बनती है? बेसिकली बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द विट्रस, and they later form fibrovascular network that is adherent to the posterior vitreous. It can be tangential or anterior-posterior. The diagnosis के लिए हमारे पास symptoms, the patient will complain of visual field defects and it progresses slowly, and obviously there's going to be photopsia and floaters. Photopsia and floaters are not going to be present. Sorry. Signs, जैसे मैंने पीछे एक पिक्चर में देखा था, इसमें that tractional retinal detachment की जो configuration होती है वो concave होती है. So it's going to be concave configuration and there are going to be no breaks in it, and retina की mobility reduce हो गई होगी, and shifting fluid is going to be absent, and subretinal fluid is shallower than as compared to rhegmatogenous retinal detachment. B scan findings where we're going to find incomplete PVD and relatively immobile retina. The next topic is exudative retinal detachment. What is exudative retinal detachment? Presence of subretinal fluid and absence of breaks. It is characterized by accumulation of subretinal fluid where in the absence of retinal breaks and traction. Subretinal fluid may be derived from vessels of either the neurosensory retina or choroid. The causes can be choroidal tumors, inflammation, bullous central serous chorioretinopathy, iatrogenic causes, choroidal neovascularization, hypertensive choroidopathy, and idiopathic. This is a picture of exudative retinal detachment, which is caused by choroidal melanoma. Diagnosis, it can be either unilateral or bilateral. We won't find any traction in it, and floaters will be present only if vitritis is there, and obviously there are going to be visual field defects and the progression is rapid. Signs, इसकी जो configuration होती है वो convex होती है, जबकि tractional की concave होती है, and there's also going to be smooth surface, and the detached retina is going to be mobile. There's going to be shifting fluid present and leopard spots. Leopard spot resolution के बाद आते हैं, and shifting fluid is this कि जब patient supine position में लेटा हुआ होगा तो fluid back of the eye पे चला जाएगा, और वो बैठेगा तो फिर it's going to go on the inferior part of the retina. This is a picture of shifting fluid. In this one, there is inferior collection of subretinal fluid when the patient is sitting, and in the other pictures, the subretinal fluid shifts upward when the patient assumes the supine position. Leopard spot pigmentation following resolution of exudative retinal detachment. Treatment for exudative retinal detachment, the treatment entirely depends on the cause of the exudative retinal detachment. In some cases it resolves spontaneously. Obviously अगर idiopathic होगा तो उसमें हो सकता है resolve. इसके अलावा systemic steroids दिए जाते हैं, और it can also seal by laser photocoagulation. Thank you. चाहे वो सीरियस है, चाहे वो सेक्शन है, चाहे वो ऐसे नहीं मार तो the surface of RP से relax होगी तो अब रेटिनल डिटेचमेंट अपने भी कौन सा कंफ्यूज हो गया कि ये रेटिना एलिवेटेड है या नहीं. CSCR is a type of retinal detachment. डिफरेंशियल डायग्नोसिस 3 हुई ना, या हमें कब कंफ्यूजन होती है जब कोई सरफेस पे रेटिना की चीज डिटैच है और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रेटिना है या नहीं है. दैट इज माइट बी पोस्टीरियर विट्रियल डिटैचमेंट. रेटिना के अंदर डिटैचमेंट हो रही है विद इन द रेटिना, दैट इज रेटिनोशाइसिस.
रेटिनोशाइसिस इज रेटिनल लेयर्स सेपरेट हो रही हैं, ठीक है, नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ आरपी, रेटिनल लेयर्स आर सेपरेटेड, जो कि फोवियोशाइसिस भी हो सकती है, जो कि पेरिफेरल कंजेनिटल जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है रिसेसिव है, एक्स लिंक जो है वो रेटिनोशाइसिस वो हो सकती है। थर्ड, रेटिना के बैक साइड पे कोराइडल डिटैचमेंट। कोराइडल डिटैचमेंट इज अगेन अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। अब जो सबसे पहले पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट है वो हमें कब कंफ्यूज करती है कि ये रेटिना हो सकता है? जब वो ऑप्टिक डिस्क के साथ अटैच व्हेन यू एग्जामिनिंग तो आपको कंफ्यूजन होती है? ऑलमोस्ट नहीं, बहुत ही कोई रेयर सिचुएशन में, जबकि ऊपर उसके विट्रियस हैमरेज पड़ा हो तो हम उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस ले सकते हैं। किस टेस्ट के ऊपर वो हमें डीडी में आती है? कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें डीडी में पीवीडी को रेटिना से देखना होता है कि कौन सा? बी स्कैन। बी स्कैन पे क्या प्रॉब्लम होता है और बी स्कैन पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पीक हाई होगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उसके साथ ब्लड अटैच है तो वो तो थिक होगी काफ़ी, ब्लड तो काफ़ी थिक होता है, तो फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके? मोबिलिटी, मोबिलिटी वन, बहुत ज़्यादा अंडररेटिंग मूवमेंट्स हो सकती है, ठीक है। और डिस्क अटैचमेंट में फ़र्क है रेटिना के और उसमें पोस्टीरियर विट्रियस में? डिटैचमेंट हमेशा डिस्क के साथ हमेशा अटैच रहती है। रेटिना कभी भी आज तक कोई ऐसा केस प्रूवन नहीं है दुनिया में जिसमें रेटिना इज डिटैच फ्रॉम द डिस्क, जबकि पोस्टीरियर विट्रियस यूजुअली कंप्लीट पीवीडी तो कंप्लीटली डिटैच हो जाती है। उसमें हमें जो रह जाती है सिर्फ पार्शियल पीवीडी विद फ्रैक्शनल डिटैचमेंट। अब डायबिटिक पेशेंट है, विट्रियस हैमरेज है, नजर कुछ नहीं आ रहा, आपने बी स्कैन किया, आपके पास पेशेंट है उसकी पार्शियल पीवीडी हुई है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि रेटिना है या नहीं है, उसके अंदर हमें को थोड़ी सी मुश्किल आती है समटाइम्स कि उसमें हमें देखना होता है कि वो किस जगह से डिटैच हो रही है, कहाँ पे उसके अटैचमेंट्स हैं, और बाज़ औक़ात वो डिस्क्स पे भी पूरी तरह डिटैच नहीं हुई होती। वो खासा एक कम्बरसम किस्म की डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जिसे बड़ा मुश्किल डायग्नोस करना है। अच्छा, सेकेंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज रेटिनोशाइसिस। रेटिनोशाइसिस में क्या होगा? रेटिनोशाइसिस इज अ क्लिनिकल डीडी, वो तो किसी टेस्ट पे नहीं है ना, क्लिनिकल डीडी। ओसीटी, पेरिफेरल ओसीटी तो हमारे पास होता ही नहीं है। अगर पेरिफेरल एक्सटेंट है तो पेरिफेरल रेटिनोशाइसिस है, तो ओसीटी पे तो आमतौर पे हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। इतना वाइड फील्ड ओसीटी मेरा ख्याल है शायद एक आधी में होती है, तो क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट तो न्यूरोसेंसरी और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम होती है, उसकी जो है वो दो लेयर्स आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर के दरमियान स्प्लिटिंग उसमें होती है। ठीक है, लेकिन उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे होगा? ठीक है, और इसको चले पढ़े, रेटिनोस्क्लेरोसिस को पढ़े। अच्छा, तीसरे नंबर पे कोराइडल डिटैचमेंट आ गई, उसको कैसे डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे? कोराइडल डिटैचमेंट में फिर आती है कि आपकी सॉलिड कोराइडल डिटैचमेंट है कि कुछ और है, सीरियस है कि हेमरेजिक है, अब उसको कैसे डिफरेंशिएट डायग्नोस करेंगे? अगर कोराइडल डिटैचमेंट विद सेंसरी डिटैचमेंट है तो कैसे पता चलेगा? सेंसरी डिटैचमेंट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद कोराइडल डिटैचमेंट्स, ऐसे ही है ना? तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कोराइड का एक सॉलिड मास है वो आपको नजर आता है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट मास किस्म का नजर आता है कि वो डिटैच हुआ हुआ है, और उसके अलावा उसको बी स्कैन पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बी स्कैन पे उसका कौन सा साइन होता है? कोराइडल डिटैचमेंट का बी स्कैन का साइन नहीं, उसकी पीक पे कोई थोड़ा सा होती, कोई रेटिना की सिंगल पीक होती है, कोराइड की पीक डिफरेंट नहीं होती, थोड़ी सी डबल पीक होती है, और उसके अलावा कोई सॉलिड कंपोनेंट साथ एसोसिएट हो वो देख सकते हैं। तो बी स्कैन इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इसका किसिंग कोराइड क्या होते हैं?
नॉट नेसेसरली सुपीरियर इंफीरियर, मतलब दोनों साइड से प्रोवाइड होती है, आई में दोनों तरफ से हाँ। उसकी डिटैचमेंट होती है फोरहेड और सेंटर। ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये तीन ही डिफरेंशियल्स हैं। उसकी फिर आगे वैरायटी है कि हम उसमें क्या है, ज़ाहिर है और तो बहुत सारे डिफरेंशियल बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली रेटिनल डिटैचमेंट की ये हमें इन तीनों लेयर्स पे करना है कि हमारी प्राइमरी लेयर डिटैच हुई है या हम किसी और लेयर की डिटैचमेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें क्या था, मैं तो बाकी क्वेश्चन को पूछ लें। The only one word which irritates the medical educationist is the audience at the end of the lecture or academic activity will be able to know. So this word "know" is very irritating to medical education because you can't measure the knowledge. How will you measure the knowledge? By asking questions. So it is better to use an action verb. The audience will be able to describe, know, and understand. These two words are forbidden in SLO. Don't use these two words because you cannot estimate or assess or judge the knowledge or know or understand. You will have to ask questions, and when the person responds, then you know the person knows or not. So you can use the word "will be able to draw a plan, justify the differential diagnosis, and list the causes, differentiate, explain, action verbs. The person who is attending your meeting will do this, and you will come to know that he or she has the knowledge or not. So this is one. The second thing is that when we did our fellowship training in 1990, we were course mates. Brigadier Tariq Shakur Sahab and myself, we started the training in 1990. So at that time, the majority of the retinal detachments were operated by scleral buckling, external tamponade. Our Professor General Naseem used to do encirclement 360-degree in every case. See, so that was the previous trend. Now I read an article in USA. There are three modalities of treatment now for the retinal detachment. That you have mentioned two: retinopexy, pneumatic retinopexy, and retinal detachment, external tamponade, scleral buckling. The third is the most common, and PPV, pars plana vitrectomy. So there was an article that in different regions of the USA, different techniques are being used. So in eastern region, New York region, they are doing more of pneumatic retinopexy. The middle region, they are doing scleral, and the western side is more doing PPV. So all have their indications. We should know uh, all the three procedures so we can apply anyone in. For example, in young patients, usually PPV is not recommended because more PVR is encountered. So they prefer to do scleral buckling. Similarly, location of the tear will dictate whether you can do pneumatic retinopexy or not. So the basic aim is to create an internal tamponade, push the retina outside, so that the retina uh, come to lie in a position with the retinal pigment epithelium. Or you apply the pressure from outside the external tamponade, so that the retina comes inside to lie in a position with the, so you have to bring the retina and RPE closer together so they can stick. And to cause sticking, let's say to encircle the break, you can use cryo or you can use the laser. Both have their indications. See, I was in Birmingham, and there the vitreoretinal surgeon, seven of them, uh, and there were the in the Birmingham Midland Hospital. There was pool of consultants, about 30
So they said a patient came in the evening with retinal detachment and they asked a vitreoretinal to come. He said, my rotation in the 30 pool is after 4 days, I will not come. If you want to bring me, so give us additional benefit. So if you want to make a pool of vitreoretinal surgeons, which will have duty once a week, then you will have to pay the on-call duty benefits. So the administrator calculated and so he sent the patient to London. The patient was operated and he came back. So he calculated whether giving the money to the vitreoretinal surgeons would be beneficial or sending the patient to the London will be more economical. And he decided, no, I will not involve the vitreoretinal surgeons for extra duties and I will send the patient. So there are multiple factors which are involved in the management, but uh, when a retinal detachment comes, especially she has mentioned acute and symptomatic, so it is an emergency. So we want to, and especially if the macula is threatened or recently detached, so we have to do it as soon as possible. So this is the group. So you want to? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ तो उसमें ये है कि आपके पास एक पेशेंट नीचे आया ओपीडी में, तो आप ओपीडी कर रहे हैं, तो कौन से दो फैक्टर ऐसे हैं जिस पे आप डिसाइड करेंगे कि जैसे सर पूछ रहे थे कि डिफरेंट किस्म की सर्जिकल अप्रोचेस हैं, तो आप कैसे डिसाइड करें कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड एज एंड अदर थिंग्स थिंग्स सडनली आप फैसला चेंज करते हैं कि नहीं आप इसका ये करेंगे या वो करेंगे, वो भी पॉसिबल होता है, लेकिन दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर हम बहुत सारा डिपेंडेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो आपको पता होना चाहिए। नो नो ब्रेक से रिलेटेड क्या? लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ नॉट नंबर, लोकेशन ऑफ ब्रेक्स। ओके, व्हाई लोकेशन ऑफ ब्रेक्स? सर ये सुपीरियर होगा तो सब रेटिना फ्लूइड ग्रेविटी से नीचे आता है, प्रोग्रेसिव होता है। नॉट सुपीरियर, लोकेशन ऑफ ब्रेक्स उसकी इक्वेटर से क्या पोजीशन है, क्या हम उसको एक्सप्लांट से संभाल लेंगे, क्या वो इतना पोस्टीरियर तो नहीं है कि उसको हमें एक्सप्लांट हमारा फोबिया तक पहुंचा हो, ठीक है ना। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी लोकेशन क्या है। नंबर, अगर आप 4 टीयर्स भी हैं, चारों कवर हो रहे हैं, दैट्स फाइन। लेटिस डिजेनरेशन के अक्सर पेशेंट मल्टीपल टीयर्स के साथ आते हैं, वो लेटिस की लोकेशन क्या होती है? पेरिफ्री से क्या मुराद है? रेटिनल पेरिफ्री। अब ये वो एमबीबीएस का लेवल नहीं है, रेटिनल देयर इज नो रेटिनल पेरिफ्री। रेटिना का किस लेवल पे है? रेटिना की जो लोकेशन है वो अपने वेसल्स के हिसाब से करते हैं। रेटिना की आपने फर्स्ट डिवीजन देखनी है, सेकंड डिवीजन देखनी है, थर्ड डिवीजन पे टीयर है तो इसका मतलब इक्वेटर पे है। रेटिना की जो वेसल्स जा रही है डिस्क से फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन पे इक्वेटर शुरू हो जाता है। इक्वेटर से आगे पोस्ट इक्वेटोरियल एंटीरियर इक्वेटोरियल जोन आ जाता है। उसके बाद फिर पेरिफेरल जोन तो बहुत आगे। पेरिफेरल जोन में हम ओरा सेरेटा से करीब एरियाज ले रहे हैं, और वो तो अगर कहीं वहाँ पे टीयर है तो फिर तो बड़ा सिंपल सा, बिल्कुल हार्डली 15 मिनट का बकलिंग का काम है, उसे करें, ड्रेन करें। अच्छा, सेकंड फैक्टर क्या है? एक फैक्टर पे तो बात होगी कि लोकेशन ऑफ द टीयर उसकी क्या है। सेकंड फैक्टर क्या है? नो, सेकंड फैक्टर जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें विट्रेक्टमी करनी है, न्यूमेटिक करनी है या बकलिंग करनी है। पोस्टीरियर विट्रियस स्टेटस, पीवीडी कह लें साथ या विट्रियस स्टेटस कह लें। विट्रियस स्टेटस की क्या अहमियत? सबसे पहली बात कि एसोसिएटेड विद द पीवीडी और नो। विट्रियस स्टेटस में सबसे पहले पीवीडी है या नहीं है। पीवीडी है तो क्या चीज़ अच्छी बात है। अब आपके लिए पार्सनल विटेक्टमी बहुत आसान है, आप अंदर जाएं, विटेक्टमी करें, फारिग करें उसको, रिलैक्स, आपको मसला कोई नहीं। अगर मायोपिक पेशेंट है, यंग 30 इयर्स ओल्ड, लेटिस डिजेनरेशन के अंदर ब्रेक है, और आप उसके ब्रेक्स उसके फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock to 4 o'clock तक ब्रेक्स हैं, और लेटिस के अंदर है, टीयर नहीं हुआ वो, ठीक है, और रेटिना डिटैच हुआ वो, पीवीडी नहीं हुई, मायोपिक भी है, उसके अंदर क्या करेंगे? यंग है, मायोपिक है, लेटिस के अंदर ब्रेक्स हैं, रेटिना डिटैच है, मैकुला भी इन्वॉल्व है, जो कुछ भी है, और विट्रियस डिटैचमेंट पीवीडी नहीं हुई, क्या करेंगे?
Yes, it's a 360 degree buckling. 360 बकलिंग करें या लोकलाइज बकलिंग करें, दैट डिपेंडिंग ऑन द सर्जन ओन चॉइस। बकलिंग क्यों करते हैं वैसे? अप्रोक्सीमेट करने के लिए किसको? ट्रीटमेंट ऐसी चीजों को और मैं ये कहता होता हूँ कि बकलिंग से मुराद यह है कि हम बकलिंग में ओरा को अपने डिजायर्ड एरिया पे शिफ्ट कर देते हैं। हम ओरा को एक नया ओरा क्रिएट कर देते हैं। हमने तकरीबन उससे कोई 4-5 मिलीमीटर पीछे जाके एक नया ओरा क्रिएट कर दिया, ताकि जितनी ट्रैक्शंस हैं, जितनी 360 डिग्री ट्रैक्शंस हैं, टेंजेंशियल ट्रैक्शंस हैं और 360 डिग्री ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विट्रियस, हमने उसको वहीं पे रोक दिया। इसलिए 360 डिग्री बकलिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं। लोकलाइज बकलिंग के अंदर सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब किसी किस्म का पीवीआर ना हो। फ्रेश डिटैचमेंट हुई, फर्स्ट डे पे पेशेंट चला गया, और वो पेशेंट आमतौर पर कैंडिडेट होता है अगर उसकी लोकेशन सुपीरियर है। ऐसा पेशेंट जिसमें हमने सेगमेंटल बकलिंग करनी है, सिर्फ सेगमेंट पे लगानी है, आमतौर पे और सुपीरियर है, तो हमने सेगमेंटल बकलिंग के बगैर सिर्फ न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी कर देंगे, दैट इज हाईली सक्सेसफुल। और अगर इंफीरियर साइड पे है तो आप उसकी सेगमेंटल बकलिंग कर देंगे, दैट इज सक्सेसफुल, क्योंकि आप वहाँ पे टेम्पोरेट नहीं दे सकते इंटरनल, यू हैव टू गिव एन एक्सटर्नल टेम्पोरेट। तो जो आपका सेगमेंटल बकलिंग है, दैट इज बेसिकली अ टेम्पोरेट। वो आपने टेम्पोरेट किस एरिया में दिया, सुपीरियर दिया, इंफीरियर दिया, वो आपने डिपेंड करते हैं। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी में आपने अंदर से दे दिया, एक्सटर्नल बकलिंग में आपने बाहर से दे दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी जावेद साहब को डिटैचमेंट हुई थी तो हमने सिर्फ मैंने उसकी न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी की है। सुपीरियर टीयर था, थोड़ा सा लोकलाइज डिटैचमेंट थी वहीं पे, क्योंकि सुपीरियर है। अगर यही इंफीरियर होती तो हम छोटा सा इंफीरियर उठा देते उसको। लेकिन अगर डिटैचमेंट कंप्लीट हो चुकी है, यू हैव टू ड्रेन दैट एरिया, तो बेटर कि आप उससे एक नया ओरा क्रिएट कर दें, 360 डिग्री बकलिंग करें। अगर लोकेशन ऑफ द टीयर स्टिल बकल पे नहीं आ रहा तो वहां पे एक छोटा सा सेगमेंटल बकल उठा दें उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इससे पीपीवी कब करेंगे? अब ये दोनों चीज़ें, लोकेशन ऑफ द टीयर आ गई अगर पोस्टीरियर है, और दूसरे नंबर पर विट्रियस स्टेटस। विट्रियस स्टेटस से पहले मैंने कहा था कि सिर्फ पीवीडी नहीं है चीज़, पीवीआर। अगर पीवीआर साथ एसोसिएट है तो विटेक्टमी, सूडोफेकिक पेशेंट है तो विटेक्टमी, पीवीडी हुई है तो विटेक्टमी, ठीक है। लिहाजा विटेक्टमी की इंडिकेशन बढ़ती जाती है। अब ऐसे क्लासिकल केस जो बिल्कुल फ्रेश आरडी के हों बहुत कम आते हैं, दैट्स वन रीज़न। और दूसरी बात है, विटेक्टमी अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, उसमें जो एक सिलेक्शन की वजह ये भी है कि इसकी रिफ्रैक्टिव आउटकम नहीं। हम जब बकलिंग करते हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव शिफ्ट कौन सा आता है? हाइपरमेट्रो बकलिंग से। आप 360 डिग्री बकलिंग की बात करो, ओवरऑल पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ता है? एक्सीलेंस इंक्रीज होगी तो मायोपिया होगा, मायोपिया होगा। और अगर हम उसमें बहुत लगाएंगे तो भी माइनस होगा। क्या चीज़, उसमें सिर्फ एक सूरत में अगर सेगमेंटल लगाएंगे तो एस्टिग्मेटिज्म, चूंकि इतना पेरिफेरी पे एस्टिग्मेटिज्म तो कम ही आता है, लेकिन ये जो 360 डिग्री के अंदर मायोपिया ही आएगा, एक्सेप्ट इन वन कंडीशन। आप भी सही हैं क्लास से कि जब हम बहुत ज़्यादा उसको नैरो डाउन कर देते हैं, ये उसकी ये बना देते हैं बिल्कुल जैसे उसका एक ख़ास नाम है, सर उसका कोई ख़ास नाम भी होता था, मुझे तो नाम तो भूल गया मैं, नाम था यार इसका। जब बहुत ज़्यादा इसको ऐसे नैरो डाउन कर देते हैं तो उसमें हाइपरोपिक शिफ्ट आती है। दैट्स द ओनली कंडीशन जब आपकी बकलिंग में हाइपरोपिक शिफ्ट आ सकती है, जब आप बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर देते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली दोनों तरफ से प्लेट बनेगी ना, दोनों तरफ से एक पैराबोला सा बनेगा ऐसे, और वो ऐसे हो जाएगा, तो वो जिसकी वजह से हाइपरोपिक शिफ्ट आएगी, एक्स लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अदरवाइज एक्स लेंथ हमेशा इंक्रीज होगी। और अब इसमें क्वेश्चन पूछें, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। पहली बात याद रखें, आप क्वेश्चन पूछें। हम जो मतलब जहाँ पे टेपर उसी एरिया में अप्रोक्सीमेट पीछे से खींच के रेटिना को लेकर अभी जैसे कहते हैं ओरा को तनाए पूरा बना देते हैं उसको। ये रेटिना है, ये दो सरफेसेस आपस में सेपरेटेड है, ठीक है ना। हमने इसके अंदर से पानी में सबसे पहले फ्लूइड ड्रेन करना है। व्हाट इज डेस? ड्रेन एयर क्रायो एक्सप्लांट। तो ड्रेन का सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रेन का मतलब है यहाँ पे एक छोटा सा सुराख किया और उसमें से पानी सारा निकाल दिया। अब ये वैसे इसके ऊपर आके जुड़ गया ना। जब हम ड्रेन करते हैं तो रेटिना फ्लैट हो चुका होता है। जब रेटिना फ्लैट हो गया तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया कि आई सॉफ्ट हो गई, तो
अब हम ये विट्रियस से समझ लें, ये आई बॉल का बाहर, तो हम यहाँ पे पानी इंजेक्ट किया, फ्लूइड इंजेक्ट किया या एयर इंजेक्ट किया। डेज में एयर इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें हमारी मॉडिफिकेशन ये है कि एयर के अंदर हमारी व्यू कम हो जाती है, तो मैं आमतौर पे फ्लूइड इंजेक्ट करता हूँ। फ्लूइड के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि फ्लूइड दोबारा उस ब्रेक में से जाके इस जगह को दोबारा डिटैच कर सकता है, तो उसकी थोड़ी सी लोकेशन का ख्याल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये रेटिना फ्लैट है, ठीक है, आई सॉफ्ट है, आपने फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया, अब आई बिल्कुल अपनी शेप में आ चुकी है। ओनली थिंग लेफ्ट इज रेटिनल टीयर। फॉर एग्जाम्पल, ये रेटिनल टीयर यहाँ पे है, ये अंदर वाला रेटिना है और ये उसका रेटिनल टीयर है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने एक बकलिंग की। बकलिंग का अगर ये टीयर बहुत ज़्यादा इस जगह पे मौजूद है कि जिसने उसको बंद कर दिया, तो फिर तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये उसका पोस्टीरियर एज है बकल का, ये उसका इंटीरियर एज है, आई बॉल ये है, पूरी आई बॉल ये है, ये उसका पोस्टीरियर एज है। और हमेशा बकल की कोशिश करनी चाहिए कि उसका जो टीयर का पोस्टीरियर एज है वो बकल के इंटीरियर एज के ऊपर हो, ताकि ये पूरी हिस्सा उसको कवर कर रहा हो। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, आप एक एक्सप्लांट यहाँ पे छोटा सा रेडियल एक्सप्लांट छोटा सा और लगा देंगे ताकि वो और एरिया कवर कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक टेक्नोलॉजी यूज होती है फिश मोल्डिंग। फिश मोल्डिंग में ये हालांकि कवर होगा जब उसके पोस्टीरियर एज के ऊपर होगा, पोस्टीरियर एज ऑफ द टीयर इज ऑन द पोस्टीरियर एज ऑफ द बकल, तो फिर क्या होगा कि ये एरिया ओपन हो वाइड ओपन हो जाएगा और जो सारा फ्लूइड विट्रियस हमारा उसमें से आ जाएगा। तो फिश माउथिंग से बचने के लिए हम रेडियल एक्सप्लांट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये रेटिना फ्लैट हो गया। अब हमें एक चीज रह गई कि फ्लैट तो हो गया, अब ये जुड़ा कैसे रहेगा? पीवीआर तो होना है। पीवीआर वैसे क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ पीवीआर? व्हाट इज पीवीआर? व्हाट इज दैट? Plasma proteins and plasma Cells. RP cell. RP Cells आते हैं। RP cell. Not only RP, there are other cells also. Cells कहाँ से आते हैं? RP से। RP से। There is no other source. लिहाजा अगर आपका टीयर बंद है तो सेल नहीं आ सकते। जो सेल पहले आ चुके हैं वही है, नो अदर सेल्स, ठीक है। लिहाजा अगर आपने अच्छी सर्जरी कर दी है और आपने कोई चीज़ नहीं छोड़ी तो पीवीआर तुक्की नहीं बनती। पीवीआर तब होगा या तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है प्रोसेस और आपने गलत फैसला किया, आपने विटेक्टमी नहीं की, ठीक है। और अदरवाइज आपने देखा है कि कोई खास पीवीआर नहीं शुरू हुआ, हमने इसको जोड़ दिया है और देयर इज नो ब्रेक लेफ्ट, तो पीवीआर नहीं होना चाहिए। वो पहले ज़माने में हम सोचा करते थे, पहले ज़माने में तो हमें ये भी नहीं पता होता था डिटैचमेंट हो क्यों रही है। वो तो हमने जब ये ओसीटीज़ पे हमने देखे हैं कि यार ये तो विट्रियस अभी तक हमने पीवीडी भी यूज़ कर ली थी, उसके बावजूद भी ये ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। तब हमें अंदाज़ा हुआ कि हम तो इसलिए वजह थी। अगर आपने कंप्लीट विटेक्टमी कर ली है तो आपके पास कोई ट्रैक्शन की वजह नहीं है। लेकिन हम सिर्फ बकलिंग की बात करें, बकलिंग में आपका पीवीआर रुक गया जब आपने इसको ब्रेक को बंद कर दिया। अब इसमें आखिरी चीज़ है कि इसको जोड़ना कैसे है। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत पीवीआर बनने का अमकान भी है तो हमें इसको क्या करना है, डेस में तीसरा पॉइंट क्या है, क्रायो हम पहले करते हैं, एक्सप्लांट हम बाद में लगाते हैं। एक्सप्लांट लगने के बाद क्रायो नहीं हो सकता। इससे सी इज थर्ड वन, डेस DACE, ब्रेन एयर क्रायो एक्सप्लांट। एक्सप्लांट आकर में हम उसको टाइट कर देते हैं। बकलिंग का जो पहला जो है 360 डिग्री बकलिंग हम पहले इसलिए करते हैं कि आई सॉफ्ट हो चुकी होती है बाद में, तो लिहाजा हमें बाद में तंग करेगी, तो हम पहले कर लें। जहाँ तक उसको स्टिच लेस और स्टिच वाला आप डिस्कस कर रही थी, फिर वही डिस्कस कर रही थी कि स्टिच लेस और स्टिच जो भी, तो वो बेसिकली एक बिल्कुल एक बहुत एडवांस लेवल की बात है। एक्चुअली हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते इस स्टेज पे। उसकी वजह ये है कि हमने जो बैंड डालना है, बैंड डालने के बाद उसको जहां पे स्टिच करना है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द टीयर। लिहाजा जो मैं कर रहा होता हूं कि मैं तो सिर्फ 360 डिग्री एक स्टिचलेस बैंड डाल देता हूं थ्रू टनल्स, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टेक्निक, वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब एक तो डॉक्टर हमारे यहाँ और भी देख के यूज करना शुरू हुए हैं। उसकी वजह यह है कि मैं बिलीव ये करता हूँ कि उसमें मैं एक्सटर्नल जरूर लगाऊंगा। अगर टीयर उसकी बैक साइड पे है तो मैं एक रेडियल एक्सप्लांट जरूर लगाऊंगा। अदरवाइज ये जो असल में जो इसका टेक्निक ये है कि आपने सिर्फ बैंड को पहले डालना है, उसको स्टिच उस जगह पे करना है जहाँ पे टीयर है।
उसकी टीयर की लोकेशन के हिसाब से, ताकि आपको रेडियल ना लगाना पड़े। लेकिन फिश माउथिंग की वजह से बचने के लिए आमतौर पर रेडियल लगाना बेहतर होता है। अगली दफा थिएटर में जब देखेंगे ना सर, हाँ, फिर समझ फिर इनको अच्छा लगा। वैसे बकलना मुश्किल है। बकलिंग इज एन आर्ट। आर्ट बकलिंग इज एन आर्ट। बकलिंग सीखना, बकलिंग करना बहुत मुश्किल है। विटेक्टमी तो मुझे फेको से ज़्यादा आसान लगती है। एंड विटेक्टमी इज इजियर देन फेको। स्पेस काफी है। हाँ, वो अब डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीवीडी एंड रेटिनल डिटैचमेंट। उसमें हमने कहा डिस्क पे अटैच हो, सो कैसे पता चलेगा आपको अल्ट्रासाउंड पे कि ये रेटिनल डिटैचमेंट है या पीवीडी? नहीं, वो डायनामिक का बाद में। पहला पॉइंट ये है कि आप अल्ट्रासाउंड पे आपने डिस्क लेके आनी है। आपको जब तक ऑप्टिक नर्व पीछे नहीं नजर आ रही, you are not sure whether you are at the level of optic disc or not. If you are not including the optic nerve shadow, you may be on the side or up or down. So to declare this is retinal detachment, the retina should be attached on the optic disc and you should be seeing the optic nerve shadow. So how to differentiate between a choroidal detachment and retinal detachment? So what is the posterior limit of choroidal detachment? Vortex vein. So retinal detachment has no posterior limit. So when to do, let's say, cryo and when to do laser to close the break, depending upon the location of the break. So if the break is more anteriorly, cryoprobe can get there easily. More posterior breaks is difficult to reach with the cryoprobe, so you will prefer the. So silicone oil is very important. So what are the types of silicone oil? Density. Name any types. 1000 centi-stroke, 5000 centi-stroke, so they have different specific gravity. So what is the common complication of silicone oil? Emulsification. Okay, so what is the sign associated with the emulsified silicone oil? Hypopia? Inverse side. So level at superiorly. So when you remove the silicone oil, do you remove the silicone oil? Yes. Why do you remove the silicone oil? So presence of silicone decreases the visual acuity. So when you remove the silicone oil, the visual acuity becomes. But you have to be sure that the retina is attached and the break is closed. So there is difference of opinion. कुछ लोग तो निकालते ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं साल बाद निकाल दें, कुछ कहते हैं नहीं 3 महीने के बाद निकाल दें. But the greatest danger is that the retina may detach when you remove the silicone oil. So if it is emulsified, retina is attached, break is closed, then you may decide to remove the silicone oil. वैसे लेक्चर्स की तरतीब क्या है रेटिनल डिटैचमेंट? रेटिना तो 2 हो गए हैं। अब इसका टेम्पलेट पे तो लगा लेक्चर होना चाहिए। मैं ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है सर। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों, ये तो आपको ऐसे आंसर आना चाहिए। मैनेजमेंट है ना, वो बात नेक्स्ट वो टेम्पलेट के ऊपर एक आपका लेक्चर देखें। प्रोप्टोसिस, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, बीआरबीओस, रेटिनल डिटैचमेंट और ट्रैक्शन डिटैचमेंट्स, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये तो लॉन्ग केस कंफर्म है आप लोगों के। शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस आपके हर एग्जाम के। तो इनके ऊपर तो ये हमारे तकरीबन 30 के करीब केसेस ऐसे हैं कि उसके ऊपर कोई नॉलेज की कोई छोटी सी चीज भी जो ना, वो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर को हो सकता है खालिद साहब को कोई ऐसी बातें पता हो जो मुझे ना पता हो, और इन्होंने पूछ ली तो आपको यू हैव टू आंसर, उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर आपको ये रेटिनल डिटैचमेंट की बेसिक मैनेजमेंट नहीं आती तो फिर एक फेलो ने कहीं बैठे होना है कि पेरिफेरी में, और उसने उसको ये पता ना हो कि रेटिनल डिटैचमेंट मैनेज कैसे करना है, तो वो तो आई लॉस पे चला जाएगा, तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसकी तो एक एक चीज जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। इट्स नॉट बेसिक। कांस्की इज नॉट अ गुड बुक फॉर रेटिना, जैकबी इज वन बुक।
चेक भी पढ़े, डॉक्टर आयजा तो पढ़ भी रही है, नहीं पढ़, जितनी आपकी नॉलेज है आपको पढ़नी चाहिए। जैक भी हैं? जैक भी नाम क्या है? चेक भी है नहीं आप लोगों के पास यहाँ पे? नहीं। वो पीवीआर का आप जिक्र कर रही थी, तो अल्ट्रासाउंड पे रेटिनल मोबिलिटी कैसे देखते हैं? हमने डिस्कस किया, आई मूव कराएं। तो अगर रेटिना मोबाइल है तो इसका मतलब ये है कि फ्रेश दिखता है, अगर रेटिना फिक्स्ड है तो पीवीआर है, और उसमें फाइब्रस टिश्यू और उसकी चीजें, और तो फिर ये डिस्कशन में ये होता है कि कम से कम लोग जागते रहते हैं, जागते रहते हैं। प्रेजेंटेशन में सो हम भी जाते हैं। जाके